अगर आप वो समझ पा रहे हो, so let me repeat, since we have started the recording. In order to solve any 2D problem, 2D array problem, basically majorly you will be using loops. Okay, it will be a rarity that if the constraints are good, we will talk about that, but for now we will focus that okay, if the constraints are okay and stuff, so you just need to focus how the pointers are moving. If you can understand how the pointers are moving, basically the question become very very easy. Okay, so what we will be covering today is one of the very commonly asked question, which actually makes everyone understand the 2D array. Now, I want you guys to think about this problem. The prerequisite of this problem is the yesterday's problem. कल जो problem हमने की है वही problem इसका prerequisite है. In order to do this problem, you need to know how the yesterday problem works. This is the problem. Think about it. जरा 5 मिनट सोचो इसके बारे में कि क्या कर सकते हैं. What can we do here? Think about it for 5 minutes. The prerequisite. कल हमने ऐसी प्रॉब्लम की है. We have did something like this. Not exactly similar, but कुछ किया है. Think about it कि इसको करेंगे कैसे. And take a 5 minutes. I am giving you 5 minutes to think about this problem. Let me reshare the question so that everyone who has joined a bit late can check it out. This is the question. I want you guys to little bit think about it and then we will solve it. इसको solve करेंगे. Think about it a bit. The prerequisite is yesterday's problem. कल वाली problem अगर आती है तो you guys will be able to think about it. Otherwise you will face issues. तो कल वाली problem आनी चाहिए इस problem को solve करने के लिए. So I will ask you guys your opinions in next 2-3 minutes. तो 2-3 मिनट में जो दिमाग में आ रहा है मुझे बताना. Like what you are able to think. जो सोच पा रहे हो वो मुझे बताना. Then we will also solve it. आज वोटिंग किस किस के यहाँ पे थी? वोटिंग करने गए ना? वोट डाला सबने? वोट डालो भाई. किसी को भी डालो, डालो लेकिन. So this is the problem which I have shared. I want you guys to give your comments कि इसको कैसे करोगे? What you are thinking? तो मैं ना यार एक बहुत ही सिंपल सी चीज समझाऊंगा इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ठीक है. आई विल गिव यू अ थॉट प्रोसेस. मतलब यहाँ पे देखो मैं व्हाट आई विल बी डूइंग. आई विल गिव यू अ थॉट प्रोसेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि काम कैसे कर रहा होगा. ठीक है. दैट विल एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर लेटर. आगे के लिए काफी चीजें समझ आ जाएंगी. So let me, share my screen. I assume the screen sharing is correctly happened. Let me open the question. I think I have already opened it. So let me open it in a different tab, obviously, because अगर मैं दूसरे tab में open नहीं करूँगा, then the problem is my PC will lag. If my PC lags, I won't be able to take the class. ये नहीं करना है. Practice. So let me open the practice session. This is the link which I have opened. So this is what it is getting opened here.
let me continue as. So let this open and we will say. So where to code? Okay, we are getting to code here. Let me expand this a bit so that we can get on both the sides. Yeah. So, okay, maybe I have to, I can't really, what do you call, expand the screen. Otherwise, I won't be able to see the charts. So let me explain what the question is. So here I will tell you how to approach this in an interview. So let me remove the dark theme here because that might be causing a lot of seeing problem. Let me check how to remove the dark theme here if I can. Just a second. Yeah, switch to light. So that you guys can at least see कि लिख क्या रहा हूँ. Otherwise you will not be able to see. So yeah. So the question says something like this. Let's say this is a matrix. So the matrix only contains zeros and ones. ठीक है? Just a second, let me think a test case. I'm thinking a test case. ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं. For now, let's keep it like this. ठीक है. So this is a given matrix to us, and what the question is saying that I am starting from this point. I am starting from this point which I have highlighted. Okay. So the coordinate of that particular point is 0, 0. I will start from here. Okay. Now what the question says that okay, I am starting from here. Initially, I will move in the right direction like this. Okay. I will move in the right direction. The moment I encounter a 1, the moment I encounter the 1, I will change I will change my direction by 90 degrees. I think that is clear. So whenever I encounter a 1, I change the direction 90-degree clockwise. Clockwise means if I'm going like this, right? So this happens. So I will start going down. Follow my cursor. Follow my cursor. Now I again encounter this. I will start going left. Then I again encounter this one. I start going up. And this is the point I will go out actually of the matrix. So this is the point I have to return. This point is the what is the answer I have to return. This is the point which I have to return. So this index is nothing but 0, 1. This is the point from where I am actually getting out of the matrix. So the answer is this. Is this clear? Question clear hai kya? Is the question clear to everyone? Is the question clear to everyone? Any doubt in the question? किसी को कोई question में doubt है कि question कैसे काम हो रहा है? How the question is working? Is that clear? Anybody, any doubt in the question? Question क्या कह रहा है? Anyone have any problem? Basically, we are starting from 0, 0. We are moving in the right direction, right side. Basically, you can say west. And the moment you encounter a 1, you change the direction 90-degree clockwise. And what you need to tell from where you will exit the matrix. You have to return the point I, j from where you will exit the matrix. I hope the question is clear. Is the question clear now? तो कोई बताएगा हाउ विल आई अप्रोच दिस? कोई सोच पा रहा है हाउ टू अप्रोच दिस? कैसे अप्रोच करें? एनीबडी कोई कुछ सोच पा रहा है? कल वाली प्रॉब्लम ही है. इट इज यस्टरडेज प्रॉब्लम. थोड़ा सा चेंज कर दिया है उसमें. If anyone is able to think about this problem, please put your thoughts in the chat box, or you can unmute कर सकते हो. Completely up to you. I want you guys to put a bit pressure on your mind and think कि क्या कर सकते हो.
आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 2 मिनट ले लो। चलो भाई, इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक कंप्लीटली ओके। अब मैं जरा बताता हूँ तुम लोगों को करना कैसे है इसको। सबसे पहली बात, यू विल स्टार्ट फ्रॉम 0,0। यस और नो? लेट्स टेक द पॉइंट्स। क्वेश्चन के पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले हमें स्टार्टिंग दे दी गई है 0,0, ये क्वेश्चन में दिया गया। वी आर गिवन डायरेक्शन चेंज होगा कैसे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? इफ वी आर गोइंग राइट, राइट से डाउन हो जाएगा, डाउन से लेफ्ट हो जाएगा, एंड लेफ्ट से अप हो जाएगा, एंड अप का राइट हो जाएगा, एंड दिस साइकिल विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। ये साइकिल चलती रहेगी, लाइक दिस 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 इज अ साइक्लिक थिंग। ये साइकिल में चलता रहेगा, राइट से डाउन, डाउन से लेफ्ट, इफ यू एनकाउंटर अ वन, एंड लेफ्ट से अप। दिस इज वन थिंग व्हिच आई कैन फिगर आउट। Another thing which is said that starting was 0,0 दिया है, and I don't know how it will move. So I can like assign a variable कि let's say I can assume that okay I is 0 and j is 0 and I will move them. I will move them accordingly. अच्छा, राइट साइड जाने का मतलब क्या है? इफ आई आस्क यू राइट साइड जाने का मतलब क्या है? ऐसे जा रहे हो, यू आर गोइंग लाइक दिस। इसका क्या मतलब है? द कॉलम इज इंक्रीजिंग, रो इज रिमेन सेम, तो j प्लस प्लस होगा। इफ यू आर गोइंग लेट्स से डाउन, तो यू आर गोइंग डाउन, रो इंक्रीज होगा। इफ यू आर गोइंग लेफ्ट, तो कॉलम माइनस माइनस होगा, कॉलम इज जे। लेफ्ट का मतलब है कॉलम माइनस माइनस, यानी कि जे माइनस माइनस। और अगर आप ऊपर जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग अप, दैट मीन्स ऊपर जा रहे हो तो रो माइनस माइनस होगा। अनदर थिंग आई हैव टू, व्हाट आई हैव टू फाइंड, फाइंड क्या करना है? एग्जिट पॉइंट। व्हाट दिस मीन्स इज आई देयर मस्ट बी सम लूप विच इज रनिंग, बिकॉज मैं ये सब कैसे, ये बिना लूप के तो कर नहीं सकता ना। लाइक आई विल यूज सम लूप टू कंटिन्यू मूविंग इनसाइड द मैट्रिक्स, एंड दैट लूप विल ब्रेक द मोमेंट आई गेट आउटसाइड ऑफ द मैट्रिक्स। वो जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा द मोमेंट आई गेट आउटसाइड द मैट्रिक्स, बिकॉज दैट इज द पॉइंट आई हैव टू रिटर्न। तो जैसे ही वो ब्रेक हुआ, आई नो दैट ओके माई लूप विल स्टॉप एंड आई विल नो द पॉइंट समहाउ। आर यू गाइज अग्रीइंग विद दिस? इतनी सी बातों से सब अग्री करते हो? Do you guys agree with this? This much of observation. I have told you the observation which I deduced from the question. इससे सभी agree करते हैं? ठीक है, इससे सब agree करते हो। अब प्रॉब्लम की बात करते हैं। यार इन कंप्यूटर, इन इनसाइड योर कंप्यूटर देयर इज नो मेथड यू कैन चेंज डायरेक्शन। लाइक कैसे करोगे? इज देयर एनी वे? नो। कोड में तो देयर इज नथिंग व्हिच वी कैन थिंक टू डू टू इन ऑर्डर टू चेंज द डायरेक्शन। That is where a little bit of logic comes into the play. Logic कैसे? ऐसे समझो, you will go to right, then you go to down, then you go to left, and then again you go to up, and from up, from this up you again go back to the left, right, है ना? क्योंकि up के बारे में अगर वन मिल गया तो it will again go back to like अगर यहाँ पे वन मिल गया, let's say I get a one here, तो it will again like मतलब ऐसे समझ लो, यहाँ पे वन अगर मिल गया, if I get a one here, तो ये यहाँ चलेगा, इसके बाद ये नीचे जाएगा, देन इट विल गो टू द लेफ्ट, यहाँ वन मिला तो इट गोज अप, और ये दोबारा वन मिल गया, इट अगेन गोज राइट, तो यहाँ से एग्जिट होगा। तो दिस कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। सो इफ यू सी केयरफुली, राइट डाउन लेफ्ट अप के बाद दोबारा राइट आ जा रहा है। आई एम आस्किंग, लेट्स से इट इज एन एरे, मतलब अब मुझे पता नहीं है लाइक हाउ विल आई नो, बट आई नो दैट ओके देयर आर 4 डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शन होती है। तो वी कैन अज्यूम अ फ्यू थिंग्स। अज्यूम क्या कर सकते हैं? लाइक वी नो दैट ओके 4 डायरेक्शंस आर देयर, एंड वी डोंट नो कि कोड में कैसे करेंगे। आई डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट इट इन द कोड। व्हाट आई कैन डू इज यूज अ बिट ऑफ इफ एल्स। इफ एल्स तो यूज कर सकता हूं ना। इफ डायरेक्शन अभी आर है, आर डायरेक्शन को डी कर दो, अगर वन की वैल्यू मिली, इफ द वैल्यू इज वन, दिस इज वन वे, मैं ऐसा कर सकता हूं।
बट उसमें तो काफी सारे इफ एल्स लिखने पड़ जाएंगे ना, यस और नो? डू यू गाइस एग्री कि अगर मैं इस तरीके से हर कैरेक्टर को मैनेज करने लगूंगा तो बहुत सारे इफ एल्स लिखने पड़ेंगे? आई वुड नीड टू राइट अ लॉट ऑफ इफ एल्स टू हैंडल गिव डायरेक्शन इज आर, देन चेंज इट टू डी, देन डी से अगर डी है वैल्यू 1 तो लाइक बहुत लंबा कोड हो जाएगा ना? डू यू गाइस एग्री दैट द कोड विल गेट मोर मेसियर? ये बात एग्री कर रहे हो कि काफी सारे इफ एल्स लिखने पड़ेंगे? इफ माय वैल्यू इज 1, इफ द मैट्रिक्स वैल्यू इज 1, तो उस टाइम हम चेक करेंगे कि डायरेक्शन क्या है, उसके बेसिस पे चेंज करेंगे, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो राइट नाउ आई नो दैट देर आर 4 वैल्यूज। ठीक है, देर आर 4 सिंपल वैल्यूज। यहाँ पे काम आएगा लिटिल बिट ऑफ मैथ्स। ये तुम लोगों को थोड़ा सा दिस यू मे नॉट बी एबल टू गेस, डोंट वरी, ये चीज है जो तुम्हें मैं गेस करवा रहा हूँ। देर इज वन वे कि तुम इफ एल्स का यूज कर सकते हो, मैं वो भी तुम लोगों को बता दूंगा, आई डोंट हैव एनी इशू, मैं वो भी बता देता हूँ। तो हम इफ एल्स का यूज कर सकते हैं। डू यू गाइस एग्री कि वी कैन यूज इफ एल्स? डू यू गाइस एग्री कि वी कैन यूज इफ एल्स की अगर डायरेक्शन मेरा लेट्स से आर है तो हम चेक करेंगे इसके अंदर कि अगर वैल्यू 1 है, इफ वैल्यू इज 1 तो डायरेक्शन को डी कर दो, लाइक समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। एल्स इफ मतलब फिर हर एक के लिए लिखना पड़ेगा, आई विल नीड टू राइट फॉर एवरीवन, और आई कैन आल्सो राइट लाइक दिस। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई अगर वैल्यू 1 है, इफ माय वैल्यू इज 1, अगर वैल्यू 1 है तो मैं चेक करूंगा कि क्या डायरेक्शन थी। तो इफ माय डायरेक्शन इज डी, देन आई विल से दैट मेक द डायरेक्शन एज एल। एल सिर्फ अगर मेरी डायरेक्शन जो थी वो एल थी, तो वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है? वैल्यू 1 होने का मतलब है दैट द डायरेक्शन विल चेंज, क्योंकि 1 है ना तो 90 डिग्री चेंज, तो डायरेक्शन अब यू हो जाएगी। आर यू गाइस गेटिंग दिस? की इफ एल्स लिखने पड़ेंगे काफी सारे? आर यू गाइस गेटिंग द आइडिया कि इफ एल्स क्यों लिखने? यस और नो पहले बताओ थोड़ा सा, आर यू गाइस गेटिंग द थॉट प्रोसेस? मैं यहाँ पे तुम लोगों को सोचने का तरीका बता रहा हूँ कि बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स वी हैव कवर्ड टिल नाउ, अभी तक जो कवर किया है उसके बेसिस पे क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। तो वी आर यूजिंग लूप्स, वी आर यूजिंग अ बिट ऑफ इफ एल्स। इतने से सभी अग्री करते हैं? आई एम नॉट गेटिंग अ यस और नो अंटिल नाउ, सो आई एम जस्ट आस्किंग कि ये सबको क्लियर है? तो करते हैं भाई। आई नो दैट, ओके, आई नीड, तो मैं क्या करता हूँ अब यहाँ पे ना, डायरेक्शन के लिए लेना पड़ेगा तो कैरेक्टर लेना पड़ेगा। आई नीड टू टेक अ कैरेक्टर, एक कैरेक्टर ले लेते हैं। तो कैर सी एच, इनिशियल डायरेक्शन क्या है? इसका नाम डायरेक्शन ही दे दो। इनिशियल डायरेक्शन क्या है मेरा? द इनिशियल डायरेक्शन इज राइट साइड। ठीक है, एंड आई नो दैट माई स्टार्टिंग पॉइंट इज आई, और मुझे मैट्रिक्स के अंदर रहना है। तो मैट्रिक्स के अंदर कैसे रहोगे? अंटिल आई ट्रैवल इन साइड द मैट्रिक्स, ध्यान से देखना, अंटिल आई ट्रैवल इन साइड द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर रहने का मतलब है आई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई विल बी लेस देन n, and j will be greater than equal to 0, and j less than m. Do you guys agree? मैट्रिक्स के अंदर रहना। इफ दिस लूप ब्रेक्स यू गेट आउटसाइड द मैट्रिक्स। अगर ये लूप ब्रेक हो जाता है दैट मींस यू आर आउटसाइड ऑफ द मैट्रिक्स। डू यू गाइस एग्री? बोलो। अगर ये लूप ब्रेक हुआ दैट मींस यू आर समवट आउटसाइड द मैट्रिक्स, तब देखेंगे क्या करना है। बट फॉर नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये how you are how you are sure that you are inside the matrix? Simply you are within the valid indexes of matrix. अगर आप किसी invalid index पे पहुंच गए, if that index is not accessible in the matrix, that means we are somewhere outside the matrix. Yes or no? इतनी बातें समझ आई हैं सभी को? तो अगर ये पॉइंट क्लियर है सभी को कि यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि भाई ठीक है, we somehow somewhat figure out that we have to move, तो कैसे मूव कैसे करना है? अब कोड कैसे लिखेंगे? सो मैट्रिक्स में वैल्यूज क्या क्या है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ वैल्यू, वन इज जीरो, वन इज वन। मतलब एक जीरो है और एक वन है, यही तो दो वैल्यूज है, जीरो और वन। सो लेट्स यूज देम। इफ द मैट्रिक्स वैल्यू इज जीरो, then what will happen? If the matrix value is 1, then what will happen? अग्री करते हो कि नहीं करते बताओ?
ठीक है, इतनी बात से अग्री करते हैं। थोड़ा और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, वी हैवंट रेड द क्वेश्चन, कि given a matrix size of zeros and one, you enter at left to right direction. Okay, like you are technically going in right direction initially. When you encounter is, you retain the same direction. And you encounter one, you have to change the direction to the right side and change that one to zero. तो मतलब क्या है, जब one मिलेगा, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में लिखा है when you encounter a value one, you have to change your direction to the right or basically 90 degrees. इसका मतलब है 90 degrees. एंड चेंज दैट वैल्यू 1 to 0, मतलब उस 1 को 0 कर दो। ये भी क्वेश्चन ने लिखा है। अच्छी बात है, ये चीज क्वेश्चन ने मेंशन की है। तो जैसा क्वेश्चन ने लिखा हम वही काम करेंगे। इफ द मैट्रिक्स वैल्यू इज 0, यू रिटेन द सेम डायरेक्शन। कैसे पता चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन है? इफ डायरेक्शन वेरिएबल इज आर, तो मतलब सेम डायरेक्शन में मूव करना है, तो आर का मतलब है कॉलम प्लस प्लस। एल्स इफ डायरेक्शन वैल्यू अगर मेरा क्या है, क्या हो सकता है, डाउन, तो डाउन अगर चल रहा होगा तो आई प्लस प्लस होते आएगा। एल्स इफ डायरेक्शन वैल्यू अगर मेरा एल है तो कॉलम माइनस माइनस यानी कि जे माइनस माइनस, और अगर ऊपर जा रहे हैं तो आई माइनस माइनस। बट अगर एल्स में पहुंचे, ये वाला एल्स, अगर मैट्रिक्स वैल्यू इज वन, इफ द मैट्रिक्स वैल्यू इज वन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इफ द मैट्रिक्स वैल्यू इज वन, दैट मीन्स क्या कहा क्वेश्चन ने, डायरेक्शन चेंज करनी है। सबसे पहले जैसा लिखा वही करेंगे। तो सबसे पहले उसने कहा है चेंज दैट, व्हाट डू यू से, लाइक व्हेन यू एनकाउंटर अ वन, एल्स में लिखा है, तो देखो एल्स इफ यू एनकाउंटर वन, तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ जैसा क्वेश्चन ने लिखा। एल्स इफ आई एनकाउंटर अ वन, एल्स इफ आई एनकाउंटर अ वन, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन ने लिखा है, ये रीड करा। इसके बाद क्वेश्चन ने लिखा है चेंज दैट डायरेक्शन टू द राइट, कि 90 डिग्रीज पे चेंज कर दो। चलो कर देते हैं। तो कैसे चेंज होगा, तो इसी कॉपी करेंगे। अगर डायरेक्शन आर है तो आर के लिए डायरेक्शन अब मेरा हो जाएगा डी, और डायरेक्शन डी है तो मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अब अप के लिए। और अगर डायरेक्शन मेरा अप है, सॉरी एफ नहीं, सॉरी लेफ्ट के लिए होगा, गलत हो गया, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से, लेफ्ट के लिए अप होगा, सॉरी। अब ठीक है। एंड अगर डायरेक्शन अप है ऑलरेडी तो डायरेक्शन आर हो जाएगा, कि अगर ऊपर जा रहे थे वन मिला, राइट साइड जाने लगेंगे। ये करा क्वेश्चन ने, करेक्ट है। उसके बाद उसने लिखा है कि चेंज दैट 1 to 0, ठीक है, तो हमने डायरेक्शन पहले चेंज करी, वी हैव चेंज द डायरेक्शन फर्स्ट एंड देन चेंज द वैल्यू टू 0, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड। कर दिया। नाउ व्हेनेवर दिस लूप स्टॉप्स, जब भी ये लूप स्टॉप करेगा, कब लूप स्टॉप करेगा, एनी ऑफ दिस कंडीशन इज इनवैलिड, कोई एक कंडीशन इनमें से इनवैलिड हुई है। कितनी कंडीशंस हैं, टोटल 4 कंडीशंस हैं दैट कैन बी इनवैलिड। तो जब ये लूप रुकेगा, वेन एवर दिस लूप ब्रेक्स, तो ये लूप यहाँ कहीं रुक सकता है, वेन एवर इट हैपन्स। तो ये 4 कंडीशन ही चेक करनी पड़ेंगी मेरे को। तो क्या हो सकता है, अगर आई -1 हो गया तो या तो ऐसा होगा, एल्स इफ ऐसा भी हो सकता है कि आई एन के बराबर हो गया हो, अगर ये कंडीशन इनवैलिड हुई, इसकी वजह से लूप रुका है। एल्स इफ जे भी -1 के बराबर हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है जे एम के बराबर हो गया हो, कुछ भी हो सकता है ना। और नीचे से हम रिटर्न कर देंगे -1, -1। इसका मतलब ये कि हम कभी बोर्ड से बाहर नहीं आ पाए। -1 का मतलब ये कि वी नेवर केम आउट ऑफ द बोर्ड, इवन दो इट हैज स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि हम बाहर जाएंगे। आई एम टेकिंग अ वर्स्ट केस कि लेट से कभी हम बाहर ना जा पाए, आई डोंट नो, मतलब हैंडल ऑल द केस, कोई हो सकता है टेस्ट केस उठ के आ जाए। सो इसका मतलब ये है कि सिंपली वी वर नेवर एबल टू गेट आउट ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। -1 का मतलब यही है। सो अगर आई -1 हो चुका है, इसका मतलब क्या है कि यू गेट आउट फ्रॉम द अप डायरेक्शन। मतलब आई -1 होने का मतलब क्या है कि ऊपर से बाहर निकले हो। आई -1 होने का मतलब क्या है कि यू आर गोइंग अप, गोइंग अप, गोइंग अप एंड यू गेट आउट।
तो रो माइनस माइनस करते 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 यू गेट आउट सम टाइम. इसका मतलब यू गेट फ्रॉम द अप डायरेक्शन. तो आई विल रिटर्न. तो दिस इज द पॉइंट वेयर यू गेट आउट. तो हमें पॉइंट रिटर्न करना है ना, तो रिटर्न न्यू इंट जे तो सेम रहेगा. क्या आई यहाँ पे आई लिखूं मैं? शुड आई राइट आई या आई -1? मुझे बताओ क्या लिखना चाहिए. I-1 क्या लिखूं? I-1 की I+1 क्या लिखूं बताओ. व्हाट शुड आई राइट हियर? आई लिखूं कि I-1 लिखूं कि I+1 लिखूं? क्या लिखूं? यस I+1, बिकॉज दैट इज द पॉइंट जहां से बाहर गया हूं. तो एक स्टेप पहले लेना पड़ेगा ना, बिकॉज आई एम आउट. तो लास्ट पॉइंट निकालना है जहां से बाहर गए. तो टेक अ स्टेप बैक. तो स्टेप पीछे ले लिया क्योंकि ऊपर जा रहे थे, तो वी वर, इसका मतलब है वी वर डूइंग I माइनस माइनस एंड समहाउ वी गेट आउट. तो टेक अ स्टेप बैक, रीच बैक द लास्ट पॉइंट एंड रिटर्न इट. सेम यहाँ पे. क्वेश्चन क्लियर है क्या? इज द क्वेश्चन क्लियर? अब आई थिंक कर लोगे. कैन यू गाइज डू दिस? कर लोगे कि नहीं बोलो. ये क्लियर है पूरा? लाइक आई एम नॉट कंप्लीटिंग इट, मैं कंप्लीट करने के मूड में नहीं हूँ, बिकॉज आई अज्यूम क्लियर हो गया हो. क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर एवरीबडी? यस और नो? इफ यू गाइस सी, क्वेश्चन के एक एक वर्ड को रीड करके निकाला गया है और उससे क्वेश्चन बनाया गया है. कुछ भी ऐसा नहीं था जो मैंने खुद से लिखा हो. आर यू गाइस क्लियर? सबको क्लियर है? पहले बता दो. इज देयर एनी डाउट? किसी का कोई डाउट है अभी पूछ लो. इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज यू कैन आस्क. अगर सबको क्लियर है प्लीज सभी एक यस डाल दो चैट में. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी टू अंडरस्टैंड. सभी डाल दो इफ इट इज क्लियर. इफ इट इज नॉट क्लियर पुट अ नो. सब नो डालो अगर नहीं क्लियर है. व्हेन वी एनकाउंटर वन डू वी नीड टू चेंज द इंडेक्स? नहीं नहीं, उसने डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोला ना. तो वी चेंज द डायरेक्शन, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज करने के बाद हमने उसे जीरो कर दिया. तो क्योंकि वैल्यू जीरो कर दी गई है, तो दिस विल बी एनकाउंटर्ड. तो उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज हो चुकी है. द डायरेक्शन इज चेंज समीर. तो वैल्यू जीरो हो चुकी है और डायरेक्शन चेंज हो चुकी है. तो तुम समझ रहे हो वो यही हैंडल हो जाएगा. आर यू, इफ यू आर गेटिंग इट? समझ गए? क्योंकि बाद में लूप चलेगा ना, तो वहां वो हैंडल हो जाएगा. So this was one thing which I wanted to, tell you guys. एक ये पढ़ाना था मेरे को. अब अगला सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सोचो जरा. थिंक अबाउट दिस. हमने दोनों सवाल कर लिए. दिस इज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम अभी तक का. अभी तक का जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसमें सबसे हार्डेस्ट प्रॉब्लम है ये. थिंक दिस कि इसमें करोगे क्या. द प्री रिक्विजिट आर प्रीवियस टू प्रॉब्लम. जो पहले दो प्रॉब्लम्स किए हैं अभी हमने, वो इसका प्री रिक्विजिट है. थिंक व्हाट यू विल डू. सोचो और बताओ क्या करना है. आई विल गिव यू 5 to 10 minutes. एंड मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ. द रीजन आई एम नॉट ड्रॉइंग इज वन रीजन कि इंटरव्यू में ऐसे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा तुम लोगों को. सेकंड, कल मैंने तुम लोगों को लाइक आई टुडे फेल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कल ड्रॉ करके अच्छे से समझा दिया था. तो आई टुडे फेल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं किया. इसको सोचो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ योर लाइफ. टू बी ऑनेस्ट, ये इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन है. दिस इज अ इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन. You are asked, so in an interview, let me tell you, इंटरव्यू में यू हैव टू राइट अ कोड विच इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड शॉर्ट. क्यों? 45 मिनट्स का इंटरव्यू होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड्स विल नॉट बी डीएसए. आपके प्रोजेक्ट्स पे भी होंगे, सब होगा. बट लेट्स से देयर इज अ प्रॉप. तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ राउंड. आई विल आल्सो टेल दैट. एक होता है कि बीच बीच में लाइक दे आर आस्किंग फ्रंट एंड,
लाइक प्रॉप्स बताओ, टेल मी व्हाट इज प्रॉप्स, प्रॉप ड्रिलिंग करवाने लग गए। दे आस्क यू व्हाट इज वर्चुअल डॉम, रियल डॉम, आपने वर्चुअल डॉम रियल डॉम बताया। दे विल आस्क यू रिकंसिलेशन इन रिएक्ट, डू यू गाइस नो व्हाट रिकंसिलेशन इज इन रिएक्ट? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टू बी ऑनेस्ट मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस बता रहा हूँ। किसी ने सुना है रिकंसिलेशन भी एक होता है रिएक्ट में? हाँ, रिकंसिलेशन पता होना चाहिए। कृष्णा ने सुना है, जिसने नहीं सुना पढ़ो भाई, ये बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। रिकंसिलेशन पता होना चाहिए, प्रॉप ड्रिलिंग मालूम होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट एपीआई काम कैसे करती है, वर्चुअल डॉम रियल डॉम अपग्रेड कैसे होता है, रिकंसिलेशन उसी को कहते हैं इन शॉर्ट। और तुम लोगों से वो मोंगो डीबी पूछना शुरू कर देंगे कि मोंगो डीबी में कैसे काम होता है, अगर मर्न से हो, ठीक है। नोट जेएस में सिंपल इवेंट आर्किटेक्चर पूछेंगे कि भाई इवेंट आर्किटेक्चर वेब ब्राउजर आर्किटेक्चर में डिफरेंस बताओ। ये सब चल रहा है, इसी बीच में बोलेगा तुमको। अब इसी के बीच में अगर वो डीएसए क्वेश्चन पूछता है, लेट्स से दिस इंटरव्यूअर आस्क यू डीएसए क्वेश्चन इन बिटवीन, तो बोलेगा इजी दे देगा कि यार लिंक लिस्ट है, इसका मिडिल फाइंड कर लो, या वो बोलेगा कि एरे है, इस एरे के अंदर सॉर्टेड एरे है, मिडिल एलिमेंट मतलब एलिमेंट ढूंढ के निकाल दो, तब तो इजी हो जाएगा। या फिर दे देगा कि एक हैश एक एरे दे दिया जाएगा और बोल देगा कि टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स निकाल दो। दिस आर कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर वो इसी तरीके से प्रोजेक्ट्स के बीच में करता है। प्रोजेक्ट के क्वेश्चन कैसे होंगे मैं बता देता हूँ। लेट्स से तुम लोगों का एक प्रोजेक्ट है, आई एम नॉट श्योर कि प्रोजेक्ट क्या है तुम लोगों का, बट लेट्स से इट इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया मैनेजर, लाइक यूर हैंडलिंग कितने व्यूअर्स हैं, लाइक व्हाट योर थिंग डज, कि थीम स्विचर के साथ है, इट इज विद थीम स्विचर। तो थीम स्विचर क्या करता है बेसिकली, डार्क मोड एंड लाइट मोड। सीएसएस मीडिया मीडिया क्वेरी आती है ना, इसकी मीडिया क्वेरी होती है थीम स्विच करने की, डार्क मोड लाइट मोड करने की। प्रेफर्ड कलर स्कीम मीडिया क्वेरी सुनी किसी ने? प्रेफर्स कलर स्कीम मीडिया क्वेरी होती है, ये आता होगा। तो होता क्या है कि तुम अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हो, तुमसे प्रोडक्ट में कैसे क्वेश्चन करेगा, अच्छा ये सीएसएस की प्रेफर्ड कलर्स की मीडिया क्वेरी यूज की थी, अच्छा इसको अगर मैं बोलूं कि बिना इसके करना तो कैसे करोगे, विदाउट प्रेफर्ड कलर स्कीम कैसे करोगे, इसको एक्सेसिबल बना सकते हो क्या, हाउ विल यू मेक श्योर कि ये एक्सेसिबल हो फॉर एनीवन लेट्स से हु कैन नॉट सी प्रॉपर्ली, वो कैसे करेगा। तो भाई हम एक टेक्स्ट का डाल सकते हैं, टेक्स्ट का कैसे डालेंगे, तो आपसे कंपोनेंट डिजाइन करवा सकता है। दिस इज हाउ एन इंटरव्यू गोज। बीच बीच में लेट्स से व्हेन दिस प्रोजेक्ट होल थिंग इज हैपनिंग, हाँ प्रोजेक्ट के अंदर रिएक्ट का पूछ लो तो रिएक्ट का कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन पता होना चाहिए। एक टेबल दे दिया गया है, जेसन फॉर्मेट में डेटा दिया गया, यू आर गिवन डेटा इन द जेसन फॉर्मेट, एंड आपको क्या करना है, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट दैट डेटा फ्रॉम द एचटीएमएल और वट लाइक जैसे भी करो, एचटीएमएल फॉर्मेट में दिया उसको जेसन में कन्वर्ट करो, देन उसको एक्सट्रैक्ट करो और टैबुलर फॉर्मेट में रिएक्ट फॉर्म में स्क्रीन में प्रेजेंट करो। दिस इज अ कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये सब हो जाने के बाद तुमसे बोलेगा चलो डीएसए बताओ, डीएसए के अंदर पूछेगा कि भैया मर्ज सॉर्ट क्या होता है, मर्ज सॉर्ट इंप्लीमेंट कर दो, फिर तो तुमसे बोलेगा कि तो इस तरीके से हुआ तब तो बहुत अच्छा है कि भैया इजी आ जाएगा, टफ नहीं आएगा। बट लेट्स से प्योरली डीएसए राउंड है, अगर प्योर डीएसए राउंड है, एक होता है इस तरीके का राउंड, एक होता है प्योर डीएसए राउंड। प्योर डीएसए राउंड में क्या होगा, वो तुम्हें बोलेगा भाई दो क्वेश्चन है, आपको 20 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, मतलब क्योंकि 45 मिनट्स लेट से 1 आवर का राउंड है, तो 30 मिनट्स आपको एक क्वेश्चन पे मिलेगा। उस 30 मिनट्स में आपको वो क्वेश्चन सुनना है, क्वेश्चन सुनने के बाद आपको सोचना है, सोचने के बाद क्लैरिफाइंग क्वेश्चन भी करने हैं, अप्रोच भी बताना है, मतलब अप्रोच भी बोल मतलब अप्रोच भी ऐसे बताना है कि भाई मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैं तुम देखो ना मैं कुछ भी करता हूँ मैं बोलता हूँ तुम लोगों के सामने कि आई एम थिंकिंग लाइक दिस, तो इसको ऐसे सोच सकते हैं, तो आपको भी वैसे ही सोचना है। ये सोच लिया, सोचने के बाद क्या होगा, आपको वो चीजें बोलनी भी इंटरव्यू के सामने, वो बोलना, बोलने के बाद उसका कोड करना है, कोड भी फटाफट, 30 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन में, वो दूसरे को उतना टाइम नहीं देगा। कोड करने के बाद उस कोड सही लिखा होना चाहिए और कोड का ड्राई रन भी करना है। इसीलिए इन इंटरव्यू इट इज ऑलवेज एडवाइस कि छोटा कोड लिखो, फटाफट सोचो। मैंने आई डोंट नो इफ दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइस, ये हेल्पफुल था, मतलब मैंने सोचा बता देना चाहिए। मतलब दिस इज हाउ एन इंटरव्यू विल हैपन, किसी भी स्टार्टअप में दोगे या किसी भी कंपनी में दोगे, दीज आर द टू काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज यू विल फेस। अगर डीएसए का एक प्रॉपर राउंड नहीं होता तो हर राउंड में छोटे छोटे डीएसए के क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, कि दे विल आस्क यू रिवर्स एन एरे, एरे रिवर्स करके दिखा दो, बहुत आसान है, जस्ट प्रिंट द एरे फ्रॉम बैक टू स्टार्ट, उल्टा प्रिंट कर दो या स्वैप कर सकते हो, आई विल टेल यू स्वैप एंड रोटेशन, मैं भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी इजी रहेगा। इफ यू गाइज आर लाइक
नॉट अ प्योरली डीएसए राउंड, तब इजी रहेगा. बट इफ इट्स अ प्योरली डीएसए राउंड देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हाँ भैया दो सवाल अच्छे देगा. आई होप दैट हेल्प्स. हाँ, एनीवेज ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसको सोचो जरा. आई एम गिविंग यू कितना टाइम दूंगा? आई एम गिविंग यू 4 मिनट्स, 4 मिनट दे रहा हूँ, इसको सोचो जरा. किसी ने दिए डीएसए वगैरह के इंटरव्यू? एनीबडी हैज एक्चुअली गिवन? यहाँ पे किसी ने इंटरव्यूज दिए हैं क्या? डीएसए पूछा किसी से इंटरव्यूज में? किसी से पूछा गया है क्या? आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड. किसी ने अगर इंटरव्यूज दिए हैं तो ऐसे ही होता है जैसा मैंने बताया, या फिर यू गाइस हैव सम अनदर एक्सपीरियंस? तो इस बात का ख्याल रखना भाई, इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना. दिस इज व्हाट इट विल बी. सो डीएसए इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, अनलेस यू आर अप्लाइंग फॉर अ कंपनी ऑफरिंग यू मोर देन 9 लाख 8 लाख रुपीज. यू कैन एक्सपेक्ट कि डीएसए ठीक ठाक लेवल का होगा, बट लेट्स से यू गेट अ एमएनसी, एमएनसी मिल गई तुमको, तब तो भैया डीएसए प्रॉपर एक आएगा. बिकॉज डीएसए रिक्वायर्स यू टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स फॉर स्टूपिड प्रॉब्लम्स. मतलब ये प्रॉब्लम्स जो हम कर रहे हैं इनका कोई लाइफ में रियल लॉजिक नहीं है. बट बट इसमें ये क्वेश्चन आना चाहिए. द रिएक्ट, जैसे रिएक्ट का डॉम होता है, दैट एट द एंड इज अ ट्री, ट्री नोड, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है. जावास्क्रिप्ट के अंदर जो इवेंट लूप आर्किटेक्चर है, क्यू, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है. जो स्टैक होता है, कॉल स्टैक, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है. सो these are internally implemented over data structures. That is why data structures are important. और इसलिए डीएसए कभी कहीं नहीं जाने वाला. एनीवेज, ये क्वेश्चन किसी को समझ आया कि करना क्या है इसमें? डिड एनीवन गेट एनी आइडिया इसमें करना क्या है? तो मैं तो देखो ये सवाल कई बार करवा चुका हूं, तो मुझे तो रीजन मतलब अब तो ऑब्वियसली आ गया होगा. बट लेट्स से मैं इसे पहली बार करता, तो मैं कैसे करता? मैंने अभी दो सवाल करे, मैं उन दोनों सवालों का यूज करूंगा. करेक्ट. मैंने अभी जो दो सवाल करे हैं, मैंने जैसे बोला, मैं उन्हीं दो सवालों का यूज करूंगा. यस और नो? क्योंकि इफ यू गाइस थिंक केयरफुली, रिलेटेड है प्रीवियस दो प्रॉब्लम्स से. जो दो 2D एरे की प्रॉब्लम्स कराई हैं, आर दे रिलेटेड? स्पाइरल वाली एंड दिस वन, एग्जिट पॉइंट, आर दीज टू, इन दोनों का मिक्स है ये तीसरे वाली प्रॉब्लम? डू यू गाइस एग्री? उन दोनों का ही मिक्स है, काइंड ऑफ. बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो. कुछ उसी तरीके का मिक्स वगैरह लग रहा है. तो यार डायगोनल ट्रेवर्सल में क्या होता है? चलो डायगोनल ट्रेवर्सल भी देख लेते हैं. तो यार जब ऊपर जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग डायगनली अप, तो मैं बता देता हूँ, इफ यू आर गोइंग डायगनली अप, तो भाई योर कॉलम विल इंक्रीज एंड योर रो विल डिक्रीज. इसका मतलब होता है कॉलम डिक्रीज होना. मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि ये चीज तुम लोग सोच पाओ. नाउ थिंक अबाउट इट, जो मैं लिखने वाला हूँ, ठीक है? अगर डायगनली अप जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग डायगनली अप, इसका मतलब होता है भाई कि योर रो इज डिक्रीजिंग एंड कॉलम इज इंक्रीजिंग. इफ यू आर गोइंग डायगनली, मैं अप राइट लिख देता हूँ यार, क्योंकि ये भी जरूरी है. डायगनली अप इन द राइट साइड, ठीक है? अब डायगनली अप इन द लेफ्ट साइड अगर है, तो रो तो फिर भी डिक्रीज हो रही है, बट द कॉलम इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. मतलब बैक में जा रहे हो ना, ऐसे उल्टा. 9 to 5, सो दिस इज 9 इंडेक्सेस. नाउ का इंडेक्स क्या है? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, आई कैन एक्सप्लेन इट. इंडेक्स ऑफ वेरिएबल 9, 9 का वेरिएबल क्या, 9 का क्या है? दिस इज 2,2. 5 का इंडेक्स क्या है? इफ यू गो डायगनली, डायगनली अप इन द लेफ्ट डायरेक्शन, मतलब
लेफ्ट साइड में अगर डायगनली ऊपर जाओ तो 5 का है 1,1। सो इफ यू सी द चेंज, वैल्यू चेंज हो गई ना, एक एक से माइनस माइनस। इफ यू गो डायगनली डाउन इन द राइट, तो रो तो इंक्रीज होगी, रो विल इंक्रीज एंड कॉलम विल आल्सो इंक्रीज, क्योंकि आई 5 to 9 जा रहे हो, यू आर गोइंग 5 to 9 डायगनली डाउन इन द राइट डायरेक्शन। तो 5 का इंडेक्स है 1,1, तो यू आर गोइंग टू 2,2, so you can understand it very well. Let's say you are going diagonally down in the left, so your row will increase but obviously column will decrease. ये चार चीजें क्लियर है क्या? आर दीज फोर थिंग्स क्लियर टू एवरीवन? ये चारों चीजें क्लियर है क्या? क्या ये चारों चीजें क्लियर हैं सभी को? इफ यू आर गोइंग डायगनली अप इन द राइट साइड तो कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज होंगे? इफ यू गो डायगनली अप इन द लेफ्ट साइड तो कोऑर्डिनेट कैसे चेंज? ये क्लियर है कि नहीं, ये बता दो। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे लो। 4 से 2 जा रहे हो, यू आर गोइंग 4 to 2, 4 से 2 जा रहे हो ऊपर वाले के लिए। तो 4 से 2 जाने का मतलब क्या है? 4 का कोऑर्डिनेट क्या है? 1,0। यू आर गोइंग फ्रॉम 1,0 to 0,1। खुद देख लो, आई माइनस माइनस हुआ, जे प्लस प्लस हुआ। डायगनली अप लेफ्ट का मतलब क्या है? लेट्स से मैं 5 से 1 जा रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि 1,1 से 0,0 जा रहा हूँ। जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल की रन कैसे होगा। तो आई माइनस माइनस हो रहा है, 1 से था 0 पहुंच गया 1। डायगनली डाउन राइट, तो 5 से 9 जा रहे हो लेट्स से, तो यू आर गोइंग फ्रॉम 1,1 टू 2,2। और डायगनली डाउन इन द लेफ्ट, लेट्स से यू आर गोइंग फ्रॉम 5 से 7, तुम 5 से 7 जा रहे हो लेट्स से, यू आर गोइंग फ्रॉम 5 to 7। 5 का इंडेक्स क्या है? 5 का इंडेक्स है 1,1। यू आर गोइंग वेयर 2,0, तो रो इंक्रीज हो रही है एंड कॉलम डिक्रीज हो रहा है। आर दीज फोर थिंग्स क्लियर नाउ सभी को? व्हाट ऑल दीज थिंग्स मीन? अब अगर ये क्लियर है कि ये कैसे मूव करेगा, तो आई थिंक अब तो दिक्कत नहीं आना चाहिए। आएगा क्या दिक्कत? अब दिक्कत आएगा, बताना जरा। इसमें कौन कौन सी डायरेक्शन यूज हो रही है? तो यहाँ पे क्या क्या डायरेक्शन यूज हो रही है? इफ आई आस्क यू, यहाँ पे कौन कौन सी डायरेक्शन यूज हो रही है इन दिस क्वेश्चन? ये तो जेनेरिक बता दिया, आई जस्ट टोल्ड द जेनेरिक थिंग हियर। ये तो जेनेरिक था, ये समझ लिया हमने। इन दिस क्वेश्चन द डायरेक्शंस व्हिच आर यूज्ड इज डायगोनली अप राइट एंड डायगोनली डाउन लेफ्ट। यानी कि अपराइट का मतलब क्या है? डायगोनली अप राइट, यानी कि आई माइनस माइनस और जे प्लस प्लस होगा। डायगोनली डाउन लेफ्ट, डायगोनली डाउन लेफ्ट का मतलब क्या है कि आपका क्या होगा, कोई बताएगा? आई प्लस प्लस होगा और जे माइनस माइनस होगा। यही तो है, नीचे जा रहे हो। 6 से 8 जाओ, तो 6 का कोऑर्डिनेट क्या है? मतलब आई थिंक ये तो क्लियर होगा, लाइक इज दिस क्लियर? डायगोनली अप राइट और डायगोनली डाउन लेफ्ट, यही दो डायरेक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में यूज हो रही है। यस और नो बोलो, यस और नो एवरीबडी। और ये चीज अभी क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर कि हाँ ये कौन से हमें वैल्यूज कैसे रखनी है, क्या करना है? इज दिस क्लियर एवरीबडी? इसमें किसी का कोई डाउट है? एनीबडी हैज एनी डाउट्स इन दिस? इसमें किसी को कोई डाउट है? एनीवन, किसी का कोई डाउट है? अगर नहीं है तो सभी यस डाल दो इफ यू गाइज आर क्लियर। और किसी को अगर नहीं क्लियर है, आस्क मी टू रिपीट इट, कर दूंगा रिपीट। बट अगर सबको क्लियर है, 17 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं क्लास में, सब यस डाल दो अगर क्लियर है। तो नहीं क्लियर है नो डाल दो, मैं रिपीट कर दूँ। चलो रिपीट कर देते हैं। ऐसे समझ लो, तो यार चलो मैं तुम लोगों को अभी के लिए समझा देता हूँ। ऐसे समझो,
कि तुम 4 से 2 जा रहे हो, यू आर गोइंग, सॉरी 2 से 4 जा रहे हो, 2 से 4 जा रहे हो, ये क्या है, यू आर गोइंग डायगनली डाउन इन द लेफ्ट साइड, है ना। अब मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट 2, कोऑर्डिनेट ऑफ 2, 2 का कोऑर्डिनेट क्या है, 0, 1, जहां पे जा रहा हूं कोऑर्डिनेट ऑफ 4, दैट इज व्हाट, 1, 0, इस 0 का 1 हो गया। तो इफ यू इसको मैं आई अगर लेके चलूं, लेट्स टेक दिस एज आई और लेट्स टेक दिस जे, तो पहले आई 0 था और जे 1 था इनिशियली, आफ्टर डायरेक्शन, आफ्टर मूविंग डायगनली, मूव करने के बाद, आफ्टर मूविंग द आई हैज बिकम 1 एंड जे हैज बिकम 0। इफ यू गाइस कैन सी, यहाँ पे मैंने करा क्या, दिस इंप्लाइज, यहाँ पे मैंने आई प्लस प्लस किया और दिस ऑल्सो इंप्लाइज कि यहाँ पे मैंने जे माइनस माइनस किया। इज दिस क्लियर दीपा नाउ, क्या ये चीज अभी क्लियर है? वी आर टॉकिंग अबाउट डायगनली डाउन इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और सभी को क्लियर है क्या, सबको क्लियर है अभी? एंड इसका क्या होगा, डायगनली अप इन द राइट, तो इसका रिवर्स, ये रिवर्स ही तो है, डायगनली डाउन इन द लेफ्ट, मतलब इसका उल्टा ही तो करना है, उल्टा ही तो जाना है, तो उल्टा जाने का मतलब क्या है, तो जो यहाँ पे लिखा था उसका उल्टा हो जाएगा ना। उसका मतलब क्या है कि डायगनली इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या होगा, आई माइनस माइनस और जे प्लस प्लस, सब। डज एवरीवन एग्री नाउ, इससे सब अग्री अग्री करते हो, यू गाइस एग्री नाउ कि यहाँ क्या हो रहा है, यस और नो, अब सब बोल सकते हो। यस अगर क्लियर है तो यस डाल दो, नहीं क्लियर है तो नो डाल सकते हो। ठीक है भाई, ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, ये समझ आ गया। तो हमें करना क्या है, व्हाट द क्वेश्चन हैज आस्क्ड, वी नीड टू ट्रैवर्स द मैट्रिक लाइक दिस, इस मैट्रिक्स को ऐसे ट्रैवर्स करो और इसको एक एरे में डाल के रिटर्न कर दो। अच्छी बात है, तो एक एरे बनाना है, जो एरे का साइज होगा, आंसर एरे का, दैट विल बी इक्वल टू न्यू इंट मैट्रिक्स डॉट लेंथ इनटू मैट्रिक्स जीरो डॉट लेंथ। तो एक एन एम बना लो, यू कैन क्रिएट अ एन और एम, int n is equal to मैट्रिक्स लेंथ, m is equal to मैट्रिक्स जीरो का लेंथ। अच्छी बात है, ये मिल गया अपने को। अब अगर हमें n और m पता है, अच्छे से पता है, तो अपने को क्या करना है, n क्रॉस m बना दो। यहाँ पे कमेंट को क्या हो गया, ओके, व्हाट हैपेंड, यहाँ पे क्या हो गया ये, ओके यहाँ गड़बड़, ठीक है। दिस इज विल बी द साइज, क्योंकि यही एरे का साइज ही तो रहेगा, द साइज ऑफ द एरे विल बी सेम, जो ये मतलब जो ये एरे में एलिमेंट्स भरोगे वो यही तो भरोगे, तो दीज आर द टोटल अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स n क्रॉस m। इस एरे को फिल करने के लिए एक इंडेक्स चाहिए, तो एक इंडेक्स बना लो जो इस पे ट्रैवल करेगा। अच्छी बात है, ये इंडेक्स इस पे ट्रैवल करेगा। अब जब ये इंडेक्स इस पे ट्रैवल करेगा तो IDX ये यूज करेंगे इसी को फिल करने के लिए, n क्रॉस m। और फिल कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, कैसे फिल करोगे कोई बताएगा, हाउ विल यू गाइस फिल इट? सोचो भाई, बताओ कैसे फिल करोगे, कैन यू गाइस थिंक समथिंग, मतलब मैं चाहता हूँ तुम लोग बता पाओ मेरे को कि करोगे क्या। आई वॉन्ट यू गाइस टू थिंक एंड गेस, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये गेस कर पाओ, सोचो 5 मिनट।
तो इफ यू आर अनेबल टू थिंक डोंट वरी, बताता हूँ मैं क्या करना है। तो अगर इतनी बातें क्लियर है, एक डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, तो स्ट्रिंग ले लो। तो मतलब एक कोई डायरेक्शन वेरिएबल ले लो, इसका नाम दे दो डायगनली अप इन द राइट। और हम चेंज कैसे कर देंगे इसे, DDR से, हम DDL से, डायगनली डाउन इन द लेफ्ट। हाँ ये तो करना ही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर ऑफ IDX विल बी, जो भी मैट्रिक्स का आई कॉमा जे होगा। वी नीड टू डिफाइन आई कॉमा जे, है ना, करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ट्रैवलिंग के लिए चाहिए। सही है, आई कॉमा जे डिफाइन कर लिया और IDX को प्लस प्लस कर दिया। अच्छी बात है। अब क्या करना है, डायरेक्शन क्या है अपनी, उसके हिसाब से मूव करेंगे। तो अगर डायरेक्शन मेरी, तो चेक कैसे करोगे, ऐसे चेक करते हैं। अगर डायरेक्शन मेरी DUR के बराबर है तो क्या होगा, अगर डायरेक्ट एल्स, अगर मेरी डायरेक्शन कुछ और है तो क्या होगा। ठीक है, अगर मेरी डायरेक्शन कुछ और है तब क्या होगा। और नीचे से हम रिटर्न कर देंगे आंसर एरे को। डू यू गाइस एग्री, डू यू गाइस एग्री, यस और नो। इतने कोड से सब अग्री करते हो, डू यू गाइस एग्री विद दिस मच कोड जो लिखा है यहाँ पे। सभी बोलो। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या आने वाली है, कोई मुझे ये बताओ प्रॉब्लम क्या आने वाली है। प्रॉब्लम ये आएगी कि एज केस, जैसे ये पॉइंट है, एज केस जो है वो हैंडल करना है, वी नीड टू हैंडल द एज केस, कि डायरेक्शन कब चेंज करना है, चेंज करना है ना डायरेक्शन, कि भाई अगर ये डायरेक्शन है तो या तो चलते रहो, कंप्लीटली चलते रहो कि भाई DUR है तो भाई हम सिंपल I माइनस माइनस जे प्लस प्लस करते रहेंगे, बट कभी ना कभी रुकना पड़ेगा ना। वी हैव टू थिंक ऑफ द एज केस, कि भाई अगर यहाँ बैठे हैं या यहाँ, मतलब आर यू गाइस गेटिंग, एज केस होंगे कुछ, कुछ एज केसेस हो सकते हैं, डू यू गाइस एग्री। देयर विल बी सम एज केसेस जब डायरेक्शन चेंज करनी होगी। तो भैया ये तुम लोगों का होमवर्क है, इसको ट्राई करना, ये मैं कल क्लास में कराऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग फिगर आउट करो। हिंट दे दिया मैंने, लगभग पूरा सवाल सॉल्व करवा दिया है, बट मैं चाहता हूँ कि ये तुम लोग खुद से ट्राई करो एक बार। प्री रिक्वेस्ट मैंने जितना बताया है सब बता दिया है, क्या हैंडल करना है, डायरेक्शन चेंज कैसे करोगे, हाउ यू विल हैंडल द डायरेक्शन चेंज। तो चेंज करने के लिए कुछ एज केसेस होंगे, तो क्या देखना है तुम लोगों को कि चेंज कहाँ कहाँ पे वैल्यू हो रही है, इसके इंडेक्स लिख लिख के देखना। जैसे एक चेंज हो रहा है, कैसे करोगे, अगर मुझे दिया जाता मैं कैसे करता, मैं देखता कि 0,0 पे चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज, एक डायरेक्शन यहाँ चेंज हुआ, एक डायरेक्शन चेंज हुआ मेरा 4 पे यानी कि 1,0 पे, एक डायरेक्शन मेरा चेंज हुआ 0,2 पे जाके, एक डायरेक्शन मेरा चेंज हुआ 8 पे जाके, क्योंकि 8 से 9 जा रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज है। तो 8 का कोऑर्डिनेट क्या है, 8 का कोऑर्डिनेट है मेरा 2,1, एक यहाँ पे चेंज हुआ। इससे कुछ डिड्यूस कर पा रहे हो, इफ यू गाइस कैन डिड्यूस समथिंग आउट ऑफ दिस, अगर इससे कुछ डिड्यूस कर पाए, जैसे मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, क्वेश्चन में N3 है और M3 है, ठीक है, N और M भी पता है तुम लोगों को, लाइक N और M पता है तुमको, एंड कैन यू डिड्यूस समथिंग, कुछ डिड्यूस कर पा रहे हो, ये होमवर्क है भाई, कर सकते हो कि नहीं, ट्राई करोगे, आई विल कवर इट, मैं इसको क्लास में कवर करूंगा, डोंट वरी, ये मैं क्लास में कवर करूंगा। बट आई एम थिंकिंग कि एक बार मैं चाहता हूँ, मैंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, दीज आर द पॉइंट्स वेयर द थिंग इज चेंजिंग, यू कैन सी फ्रॉम द क्वेश्चन, इस 0,0 के बाद ये डायरेक्शन उल्टा करा इसने,
1,0 पे जाके डायरेक्शन को उल्टा करा फिर से, यहाँ 3 पे जाके इसने डायरेक्शन को फिर उल्टा करा, यानी कि 0,2 पे, 0,2 से इनने चेंज करा है, और ये 6 पे जाके 8 पे जाके इसने फिर डायरेक्शन बदली है। तो उस टाइम क्या हो रहा है, यानी कि 1 से 2 जाने पे क्या हुआ ये भी देखना। मतलब तुम लोग, अब मैं क्या देखता, मैं एक और चीज देखता कि 1 से 2 गया अगर डायरेक्शन चेंज हुई, 4 से 7 गया, 4 से 7 जाने पे क्या हुआ डायरेक्शन चेंज होते वक्त, कोऑर्डिनेट भी बदले होंगे। 3 से 6 गया तो डायरेक्शन चेंज हुई, कैसे चेंज हुई होगी। ये सारी चीजें देखो, आर दीज नॉट कवर्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन, पिछले सवालों में कवर करी है ना ये मैंने, यही इसी तरीके से कवर किया ना, यस और नो, बोलो, ये चीजें तो कवर हुई है ना। तो इसी तरीके से मैं लिख के देखूंगा। कैन यू गाइस थिंक नाउ, अब मैं चाहता हूँ कि सोचो भैया, अब इसको थोड़ी देर होमवर्क ले लो और इसको सोचो। क्वेश्चन का लिंक है तुम्हारे पास, तुम्हें पता है इतना कोड हम लिखेंगे, ये हमने लिख दिया है। यहाँ पे क्या ऐसा लिखें कि ये चल जाए। आई हैव ऑल टोल्ड यू कि सोचना कैसे है, करना भाई यार, ठीक है। करोगे ना ट्राई भाई, मतलब होमवर्क आई अज्यूम मेरे पीछे से प्रैक्टिस करते हो, मतलब मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, आई अज्यूम यू गाइस डू प्रैक्टिस अ बिट। मैं 1 घंटा बोलता हूँ हमेशा करने के लिए, मैं 1 घंटे ज्यादा कभी नहीं बोलता। क्लास के बाद सिर्फ 1 घंटा दो, दैट्स ऑल आई आस्क फॉर डीएसए, डीएसए के लिए। डन है, अग्री कर सकते हो, करोगे कि नहीं पहले ही बता दो, अगर नहीं करोगे तो फिर देने का कोई फायदा नहीं है, मैं ही कराऊंगा फिर। मतलब मैं तब भी कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा, इट इज जस्ट कि मैं मतलब एनीवेज कराने वाला ही हूँ, बट आई वांट कि खुद से भी करूँ, दैट्स ऑल। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अच्छा, ये क्वेश्चन के बाद 2D एरे खत्म है, लाइक आफ्टर दिस प्रॉब्लम एक क्वेश्चन और कराना और 2D एरे खत्म। 2D एरे में यही था, 2D एरे में और कुछ नहीं। इफ यू गाइज नो हाउ टू मूव इन द 2D एरे, ट्रैवल करना आता है, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास।